حالانکہ پاکستان کی ایجنسیاں یہ معاملات بہت پہلے سے اٹھا رہی اور بار بار ان معاملات کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہیں کہ عمران خان صاحب روحانیت کے معاملات میں یا بشرا بی بی کو جادو ٹونا کرتی تھی اور جناب کوئی عمران خان صاحب ان سے مشورے لے کے اور وہ جو خبریں چلاتے تھے، اور حساس ادارے یعنی ایجنسیاں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ ایجنسیوں سے بشرا بی بی کو خبریں ملتی تھی، وہ عمران خان صاحب کو بتاتی تھی، اور جناب ان کے بتانے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لگتا تھا ان کو روحانیت کا علم ہے، تو جناب اس طریقے سے یہ معاملہ آگے چلتا تھا۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے بشرا بی بی، مبینہ طور پہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آئی ایس آئی کی اگر ایجنٹ ہے تو وہ اتنے عرصے سے جیل میں کیوں بند ہے؟ آئی ایس آئی کی اگر ایجنٹ ہے تو عمران خان کے خلاف آئی ایس آئی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ اگر آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے تو آئی ایس آئی اپنے کام کیوں نہیں نکلوا سکی جس وقت آئی ایس آئی ان سے رابطے میں تھی؟ مثال کے طور پہ عثمان بزدار کو ہٹانا تھا، بہت بڑا کام تھا آئی ایس آئی کا، وہ نہیں کروا پائے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا گرین ایریا ہے، اس کو براؤن ایریا میں کنورٹ کر کے لاہور کو برباد کرنا تھا، عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کروا پائی آئی ایس آئی اس وقت بشرا بی بی سے کہہ کر؟ پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ تھا، آئی ایس آئی کیوں نہیں کروا پائی بشرا بی بی سے کہہ کر؟ پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے اور تجارت کرنے کا معاملہ تھا، آئی ایس آئی کیوں نہیں کروا پائی بشرا بی بی سے کہہ کر؟ پھر ایبسلیوٹلی ناٹ جو عمران خان نے کہا وہ تو آئی ایس آئی کو اور فوج کو پسند نہیں تھا، تو آئی ایس آئی کیوں نہیں عمران خان کو روک پائی؟ احتساب سے عمران خان صاحب کو باز کیوں نہیں رکھ پائی؟ این آر او جو مانگ رہے تھے اپوزیشن کے لوگ، اور آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی، فوج یہ چاہتی تھی، میڈیا کے ساتھ بات بھی کرتی تھی کہ ٹھیک ہے نکلے ان معاملات سے، عمران خان صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے، آف دی ریکارڈ وہ کہتے تھے، تو یہ باتیں آئی ایس آئی بشرا بی بی کے ذریعے سے عمران خان صاحب سے کیوں نہیں منوا سکی؟ تو یہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات، کرپشن پر خاموشی اختیار کریں، یہ وہ ساری چیزیں تھی۔ میں اس طرح کی ایک درجن چیزیں اور آپ کو گنوا دوں گا۔ یہ چیزیں آئی ایس آئی عمران خان صاحب سے کیوں نہیں منوا سکی اگر بشرا بی بی ان کی ایجنٹ تھی اور عمران خان ان کی ایجنٹ کے کہنے کے اوپر کام کر رہا تھا؟ تو ایک تو یہ آرٹیکل یہیں پہ فارغ ہو جاتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہو۔ یہ صرف توجہ ہٹانے کا معاملہ ہے اور کیچڑ اچھالنے کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایجنسیاں عمران خان صاحب کو گندا کرنے کے چکر میں خود گندی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ دھبے لگے ہیں جو وہ کبھی نہیں دھو پائیں گے۔ عدت جیسا گھٹیا کیس انہوں نے بنایا، 300 مقدمات عمران خان پہ کیے ہوئے، اب توجہ ہٹانے کے لیے کبھی جناب ڈرون حملے ہو جاتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ میں، کبھی شادی کے اوپر تاکہ رولا پڑا رہے، اور کبھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیوی پہ جو جیل کے اندر بند ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے عمران خان صاحب، 2.25 سال ہو گئے، وہ بھی جیل میں بند ہے، ان کی بیوی بھی جیل میں بند ہے، اس کو باہر چھوڑا، ان کی بیوی کو وہ دوبارہ احتجاج کر رہی تھی، پکڑ کے پھر اندر بند کر دیا، وفاداری نبھا رہی ہے، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہمارے صدقے واری جا رہے تھے کوئی سیاستدان بھی اور کوئی میڈیا والے بھی، نواز شریف کی ایک فوٹو کہ وہ آصفہ زرداری کو پیار کر رہا ہے۔ میں نے تب کہا تھا نا، انہیں عورتوں کا کوئی احترام نہیں ہے، سب بکواس، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں عورتوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ پاکستانی ایجنسیوں کو، اداروں کو تو بالکل ہی نہیں ہے، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو گھستے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، ان کے لیے تو عورت ایک کموڈٹی کی طرح ہے۔ وہ ججوں کے کمروں میں کیمرے لگا کے ان کی گھر کی خواتین کی نجی زندگی کے اوپر ویڈیوز بنا لیتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب آپ کو یاد ہے، روتے ہوئے آئے تھے میڈیا کے اوپر، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ، ان کی بیٹی، ان کی فیملی، ان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا گیا، ہم سب کو یاد ہے۔ یہ جو لوگ انسانوں کے کپڑے اتار دیتے ہیں، جو خواتین کو اغوا کر لیتے ہیں صرف ایک گھٹیا قسم کی آئینی ترمیم کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، انہیں عورت کی عزت کا پاس ہوگا۔ ان کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات کی تھی بلاول زرداری نے، وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں، آج کے دن میں وہ بڑی ریلیونٹ ہے۔ بلاول زرداری نے کیا کہا تھا، یہ بڑا مزے کا ہے، یہ آپ سنیے۔ کئی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے ایوان کی۔ ہری بلاول کہہ رہا ہے جی کہ آپ کتنے بے غیرت ہو، اور یہ ایجنسیوں نے کیا تھا، 1-2 حرکتیں کی تھی ایجنسیوں نے۔ وہ مریم نواز والا جو دروازہ ٹوٹا تھا، وہ سیکٹر کمانڈر وہاں کا تھا کراچی کا، وہ اور 1-2 اور لوگ، انہوں نے مل کے کوئی وہاں پہ آئی جی کو بھی پریشرائز کیا تھا، یہ وہ والا معاملہ تھا۔ تو اس پہ بلاول دیکھیں نا ایجنسیوں کے اوپر کیسے بھڑک رہا ہے۔ ایک دفعہ اور سنتے ہیں، یہ آپ سنیے۔ کئی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے ایوان کی۔ کئی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو۔ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑو، عورتوں سے کیا لڑتے ہو؟ تو بہرحال وہ عورت ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے، یاسمین راشد ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، سنم جاوید، ان کی بہن فلک جاوید ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، بہت ساری اور خواتین جو ابھی جیلوں میں نہیں باہر آ گئی وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، بہت ساری جو ابھی جیلوں میں بند ہیں، عالیہ حمزہ صاحب،
कैसी अजीब उनकी जिंदगी अजीरन कर दी, इसके बावजूद वो डट कर खड़ी है, मुकाबला कर रही है, जैसे तैसे करके वो सूबे को आगे बढ़ा रही और अपने लीडर के साथ डट कर खड़ी। ये खवातीन जो है वो इज्जत के काबिल है, तहसीन के काबिल है, इन्होंने कमाल किया इन खवातीन ने। तो इनके ऊपर जो है कीचड़ उछाल के कोई अपनी इज्जत नहीं बना सकता, ना कोई इमरान खान की इज्जत को कम कर सकता। होगा पता है क्या, आप मजीद नंगे हो जाएंगे। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन ये भी आपके खाते में पड़ जाएगा। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये किया जाए। जिस खातून ने ये लिखा उनका नाम है बुशरा तस्कीन। इनके बारे में बड़े मजे की चीजें आ गई सोशल मीडिया पे। एक तो इनके हवाले से एक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, इसलिए कि सहाफी शहजाद पराचा साहब ने ट्वीट करके उसके अंदर से निकाल के बता दिया कि ये असासा किसका है, इस किस्म का उन्होंने एक चीज बताई और उससे बड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गई। तो उन्होंने उसको जो है पोस्ट को डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि बरतानवी जरीदा जिसने ये हरकत की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बैरिस्टर गौहर का ये कहना, बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उनकी किरदार कुशी की जा रही है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जाम लगाए गए जिससे वो बरी हुई हैं। ये नादरीन बात की बैरिस्टर गौहर ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये कर सकते हैं तहरीक इंसाफ जाके बरतानिया में केस? एक बड़ा सवाल है ना। देखें ना, ये हमला निजी नौयत का है खातून के ऊपर, लेकिन ये क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है तो इमरान खान साहब से मुशावरत करके ये लोग जाकर वहां केस कर सकते हैं। तो केस करेंगे तो कैसे करेंगे? कि अब बुशरा बीबी की कोई बेटी जाएंगी, या बुशरा बीबी तो जेल के अंदर बंद है, तो जेल के कैदियों के भी हुकूक होते हैं और बरतानिया तो इन मामलात में देखता है चीजें। तो अगर ये केस कर दें तो ये जो खातून है बुशरा तस्कीन, ये कैसे साबित करेंगी जो कुछ इन्होंने अपने आर्टिकल में लिख दिया? और इसमें एक और मजे की बात यह है कि एजेंसियों पे भी इल्जाम लगे हुए हैं कि एजेंसियां बुशरा बीबी के साथ मिलकर काम करती थी, असास इदारों के लोग मिलकर काम करते थे। अच्छा, ये जो खातून है ना, इनका ताल्लुक साबित हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ। माजी में तहरीक इंसाफ के हवाले से कई ट्वीट्स इन्होंने रीट्वीट्स किए हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बातचीत करती है। बड़े घटिया और गलीज किस्म के जो कुछ किरदार हैं, जो बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्वीट्स भी इन्होंने रीट्वीट्स किए और उसका ये हिस्सा बनी खातून। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ताकतवरों की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क वाली तो बात दिखाई नहीं देती, जैसी जूते पॉलिश की पॉलिसी रखी है हमारे वजीर आजम ने। मैं तो हैरान हो गया था देख के। तो इसमें इमरान खान साहब की बहन ने भी एक बात की। देखें, कल उन्हें मार पड़ी है वहां पे, उनकी बहनें गिर गई। उन्होंने सारा बताया कि हमें कैसे पुलिस वालों ने आकर मारा। 4 SHO थे, 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहनें भी गिर गई। वहां नौजवानों को गिरफ्तार किया, बहुत मार कुटाई करते रहे वहां पे पुलिस वाले। तो उन्होंने सुबह वो फिर आ गई। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ और इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मर्तबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं। आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया, और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहाँ पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले हारने वाले ओहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते। और अगर घुसेंगे तो किस किस के घर में घुसेंगे? फर्ज करें एक घर से एक पतंग उड़ी हुई है, पीटीआई का झंडा उस पर बना हुआ है, पुलिस अंदर आ जाती है तो वो तोड़ के फेंक देंगे। आप क्या कर लेंगे? आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा जब बसंत आएगी। मेरा नादरीन थोड़ा गला खराब है,
ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा है। सुहेल अफरीदी उसका मोमेंटम बनाने के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबिलाइजेशन को चैनलाइज किया जाए, हर गली मोहल्ले में बाकायदा मेंबर्स को बताया जाए कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, और लिस्टें बने, चीजें बने, जिस तरीके से आगे चलना है वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी काम नहीं हुआ। लेकिन इस मर्तबा सुहेल अफरीदी का, क्योंकि पिछली मर्तबा तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी कि 4-5 नौजवान सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान और शफीउल्लाह जान ये गाड़ी पे खड़े हैं, तो वो बहुत वायरल हो गया था। तो इस मर्तबा क्या किया गया कि गाड़ी के ऊपर और लोग भी चढ़ गए। गाड़ी पे हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब है, गाड़ी पे खैबर पख्तूनख्वा से जो असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सवाती साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनके अलावा जुनैद अकबर साहब भी इसी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे। तो गाड़ी के ऊपर लोगों की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी बढ़ रहा है। अब ये एहतजाजी तहरीक को किस नहज तक ले जाते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो अंदर काम होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान जहां ग्रास रूट लेवल तक जाके टच करते हैं, वो कहां तक पहुंचा मामला, और वो जो प्लानिंग है वो कहां तक पहुंची, वहां पे अभी कोई ऐसी इतला नहीं है। दूसरा नाज़रीन, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं, वो बेचारे सिंध के दौरे पे है। वहां पे सिंध हुकूमत ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी गंदी, यानी वो एक मरतबा फिर जैसे पंजाब करता है हुकूमत, ये नून लीग वाले जो करते हैं वही पीपल्स पार्टी वाले भी अब कर रहे हैं। रुकावटें डाल दी, गाड़ियां खड़ी कर दी, क्रैकडाउन कर दिया, तो सिंध में भी हुकूमत वही गंद मार रही है। हमने कुछ विजुअल देखे, यहाँ पे लोग कश्तियों के अंदर बैठ बैठ के अब इलाके क्रॉस कर रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी इंटीरियर सिंध में हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे। हैदराबाद से उनके रास्ते बंद किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर लोग निकले हुए हैं सिंध में एक मरतबा फिर। तो एक मोमेंटम तो चल रहा है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग भी काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो कर सकती है वो करती चली जा रही है। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त तरजीहात है वो आप ये देखें कि ईमान मजारी को और हादी अली चट्ठा को हर सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वहां पे वकील गए इनकी अदालत में, उन्होंने अदालत में कहा कि जनाब कोई गुंजाइश निकाले, हम उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, वो अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं। तो इसकी तो इजाजत दें कि दोनों वकला साहिबान अपने आप को खुद सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, नहीं इनको पकड़ के लाओ। मेरी हमारे सहाफी हैं नादिर बलोच साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ईमान मजारी वाकई बीमार है और उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो गिरफ्तारी से घबरा नहीं रही। वो ये कह रही हैं ठीक है अगर गिरफ्तारी करना है तो ये हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की दरखास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि घसीट के ही गिरफ्तार किया जाए। साहब बहादुर का हुक्म जो आ गया तो ठीक है कर ले आप, आपने इससे पहले बेशुमार पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। मारंग बलोच जो पाकिस्तान की बेटी है वो इस वक्त जेल में है। यास्मीन राशिद साहिबा इस उम्र में नवाज शरीफ को शिकस्त देने के बावजूद जेल में। सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनें, कसूर क्या उनका, वो सवाल उठाती हैं, वो दोनों भी जेल में हैं, आप उनको नहीं तोड़ पाए। इमरान खान की अहलिया जेल में है, तो अब आप ईमान मजारी को पकड़ के आप क्या निकाल लेंगे? आप ईमान मजारी को जब अंदर करेंगे ना, गिरफ्तार करेंगे, तो जिस कद के साथ आप गिरफ्तार करेंगे ये ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा, जब ये पाकिस्तान की बेटी बाहर आएगी ना तो इसका कद 4 गुना बड़ा होगा कम से कम। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, फिर जो मर्जी आप करते रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर लगातार जो पाकिस्तानियों के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने,